Good morning, viewers. I am Girish Mechandani, and you are watching Trans India Real People, Real Emotions. This week, we kick off a brand new series on Trans India called Legends of Road Transport. Friends, the legendary boxer Mike Tyson once said, "To be a legend is easy, but to become a legend takes a lot of hard work and dedication." In this new series, Legends of Road Transport, we will be covering the journey of stalwarts of the road transport and commercial vehicle industry, people who have made a huge impact to not only their business but to the road transport and the commercial vehicle industry on the whole. In our first episode of the Legends of Road Transport series, we shall be talking to a transporter who is probably amongst the top 3 fleet owners in the country. The journey of this transport company, like many others, started with just one truck, and today this company boasts of a fleet of over 3,000 trucks. Almost a decade ago, this company entered into the dealership of trucks and today is amongst the top dealers in the country for a very reputed brand. Friends, we are extremely happy to have with us Mr. Satish Dhingra, Director, Dhingra Group of Companies, and we are proud to confer upon him the title of Legend of Road Transport. At the same time, we are also very happy that the certificate of Legend of Road Transport is being given to him by his close friend and a close friend of our network, Mr. Rajiv Gupta. Friends, Delhi Gujarat Fleet Carriers, or DGFC as it is popularly known, was started in the year 1964 by Mr. Gopi Chand Dhingra. Satish ji was the youngest of 4 kids. The others were Mr. Subhash Dhingra, Mr. Ashok Dhingra and Mr. Giriraj Dhingra. While Satish ji and Ashok ji continued with the transport business, Subhash ji and Giriraj ji moved to other business interests. Born on June 16, 1962, Satish ji has been in business since 1982. After completing his graduation, Satish ji dived into the family business at the age of 20, and over the last 40 years he has taken DGFC and other business verticals to great heights, of course in coordination with his elder brother Mr. Ashok Dhingra and later on the young brigade of the Dhingra Group of Companies. Incidentally, Satish ji was born in a village called Nuh in Haryana. Many of you in the transport industry would know that Nuh and Mewat are areas which has given the road transport industry lakhs of truck drivers over the many years. So let us start our conversation with Satish ji talking about a subject that is so close to the road transport industry: truck drivers. सतीश जी, जैसा हम सब जानते हैं कि नू ने इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को लाखों ट्रक ड्राइवर दिए हैं। क्या आपकी कंपनी के ड्राइवर्स भी यहीं से आते हैं? हाँ, हमारे यहाँ पर मोर देन 70% जो ड्राइवर हैं वो मेवात से बिलोंग करते हैं। अच्छा। हाँ जी। सतीश जी, हाउ डिड यू गेट इनटू द ट्रांसपोर्ट बिजनेस, एंड क्या आपके भाई भी उस वक्त आपके साथ ही थे इस बिजनेस में? मेरे तीनों बड़े भाई भी ट्रांसपोर्ट बिजनेस में थे, लेकिन मेरे फादर ने वो कभी कभी ट्रांसपोर्ट में आते थे, फिर वो दूसरे किसी एक्टिविटी में, समाज सेवा में, तो मैंने अपने तीनों बड़े भाई मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस में थे, मैंने उनके साथ ज्वाइन किया। उसके बाद 83 और 84 में मेरे 2 ब्रदर एक कंस्ट्रक्शन लाइन में और एक लिकर बिजनेस में चले गए। तो तब से मैं और मेरे बड़े ब्रदर अशोक जी इस बिजनेस में हैं। सतीश जी, आपके फादर ने ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू कर दी थी, सो क्या ट्रांसपोर्ट कंपनी ज्वाइन करना आपकी पहली चॉइस थी, द ऑब्वियस चॉइस एज वी कॉल इट? मेरे को ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा लगता था ये बिजनेस, तो मैंने अपनी, जब मैं 10th क्लास में था तब भी मैं, जब मेरी छुट्टियां होती थी तो मैं गाड़ियों के साथ छुट्टियों में घूमने के लिए निकल जाता था। तो ऑलमोस्ट मैंने, तब हमारी गाड़ियाँ दिल्ली से गुजरात चलती थी और मैंने पूरा गुजरात ऑलमोस्ट अपनी ग्रेजुएशन से पहले गाड़ियों के साथ जा के देख लिया था। तो मैंने उस दौरान अपनी गाड़ी चलानी भी सीखी, ड्राइवरों के साथ भी रहा, उनकी प्रॉब्लम भी समझी। तो तब से, और मैं इतना इंटरेस्ट था, तो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में आने के बाद जब हमारा बिजनेस थोड़ा बड़ा होने लगा तो मेरे बड़े ब्रदर ने उनको बोले कि लिकर लाइन में उनको एक
थोड़ा एक्सपेंशन के लिए एक और साथ मतलब ज़रूरत है। तो उन्होंने हम दोनों भाइयों को बोला भी तुम में से एक आदमी इस बिज़नेस में आ जाए, यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा है। तो मैंने बोला भी मैं तो इस बिज़नेस को एंजॉय करता हूँ और मुझे समझ आना शुरू हो गया है, तो मैं तो अब इसी बिज़नेस में रहूँगा, तो मैं तो अब ट्रांसपोर्ट का ही बिज़नेस करूँगा। तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन तब भी मैंने ट्रांसपोर्ट बिज़नेस छोड़ा नहीं। Satish ji, we have heard that you don't drink at all, maybe occasionally. So was that one of the reasons that you did not want to join the liquor business? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बिज़नेस अच्छा था, उसमें देखा जाए तो थोड़ा पीस भी था, अच्छे अच्छे लोग, अच्छी इंडस्ट्री से बातचीत होती थी, सब कुछ था। लेकिन मेरे को शुरू से यही था कि मेरे को एक कामयाब ट्रांसपोर्टर बनना है, इसी में मेहनत करनी है, और मैं एंजॉय करता था इस बिज़नेस को। तो वो जो मेहनत, आपका दिल और मेहनत एक साथ जुड़ जाती है तो रिजल्ट भी आते हैं। सतीश जी, जब 1980s में आपने बिजनेस ज्वाइन किया, उस वक्त क्या चैलेंजेस, क्या डिफ़िकल्टीज थी रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में? उस टाइम जो देखा जाए तो एक तो सबसे बड़ी बात है, गाड़ियों में मेंटेनेंस बहुत होती थी। इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस होती थी गाड़ियों में, जो गाड़ी की इंजन लाइफ, जो ऑयल चेंज होता था वो 9000 किलोमीटर बाद होता था, जो आज 1 लाख किलोमीटर बाद चेंज होता है। व्हील ग्रीस, क्रॉस, पटे कमानियाँ टूटना, गाड़ियों में ओवरलोडिंग होना, नए नए टायरों का फट जाना, तो ये बहुत तरह की प्रॉब्लम होती। कोई भी गाड़ी आती थी, एक दिन 8 दिन में आती थी, एक दिन रिपेयरिंग में लगता था, तो वो बहुत बड़ी समस्या होती थी। फिर सबसे बड़ी बात है कि आपके पास कोई मैन पावर, इतनी ज़्यादा लोग नहीं होते थे, कंप्यूटर नहीं थे, तो हम लोगों को सारे काम खुद करने पड़ते थे। ड्राइवरों का हिसाब लिखना, फिर अपने भाड़ों को कलेक्ट करना, अकाउंट्स मेंटेन करना, बिल्टी मेंटेन करना, कोई भी भाड़े का डिस्प्यूट है उसको जाके सेटल करना, रास्ते में किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना तो खुद जाके करना। क्रेनें नहीं होती थी, गाड़ी को कैसे हम मुश्किल से उठा पाते थे, बड़ा टाइम लगता था इस गाड़ी को उठाया कैसे जाए। तो इस तरह की कई समस्याएँ होती थी, तो जिनका हमें सामना करना पड़ता था। And do you think business is relatively easier now as compared to the 1980s? हाँ, मैं कहूँगा एक हद पे इजी भी है और थोड़ा मुश्किल भी है। और इजी सेंस में कि गाड़ियाँ एक अच्छी क्वालिटी की गाड़ियाँ हैं, मेंटेनेंस कम हो गई है। सबसे बड़ी बात है कंप्यूटर के आने से, नया सॉफ्टवेयर आने से और ट्रैकिंग सिस्टम आने से आप गाड़ियों को, आपको कम से कम ये टेंशन नहीं होती कि आपकी गाड़ी कौन सी देरी से चल रही है, कौन सी, तो वो सब आपको सिस्टम रिपोर्ट दे देता है। पहले ये सब चीज़ें खुद मेंटेन करनी पड़ती थी, गाड़ियों को ध्यान रखना, ये गाड़ी मेरी कब लोड हुई है, कब आनी है, हर चीज़ का मैनुअली ध्यान रखना पड़ता था। तो ये चीज़ होगी। अब दूसरा, क्वालिटी ऑफ ट्रक्स इतनी अच्छी हो गई है कि गाड़ियों में रिपेयरिंग बहुत कम है, तो ये चीज़ें अभी हेल्प करते हैं। टायर लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, पहले इतनी टायर लाइफ नहीं होती थी। पहले 40,000 किलोमीटर के बाद टायर घिस जाते थे, आज वही टायर 1 लाख प्लस किलोमीटर चलते हैं। तो ये सब चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। इंजन लाइफ है, जो पहले 3 साल 2 साल बाद गाड़ी का 3-4 साल बाद इंजन खुल जाता था, अभी इंजन लाइफ जो है वो 6 लाख 7 लाख किलोमीटर हो गई है। तो ये चीज़ें सब अच्छी हुई हैं। और इसके अलावा जो अभी मुश्किल हैं, मुश्किल भी काफ़ी हैं, क्योंकि आज की डेट में इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी है, उसकी EMI निकालना, प्रॉफिट बड़े कम होते जा रहे हैं, तो ये इस तरह की प्रॉब्लम आ रही हैं। सतीश जी, पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि रोड नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, बहुत बेहतर हो गया है। 4 लेन हाईवेज़ हैं, एक्सप्रेसवेज आ रहे हैं। इन डेवलपमेंट्स ने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को या ट्रांसपोर्ट बिजनेस को किस तरह से हेल्प किया है? अभी देखिए, जो अभी तक हाईवे जितने भी इम्प्रूव हुए हैं, एक्चुअली वो नए हाईवे नहीं बने हैं, वो हाईवे जो है वो चौड़े हुए हैं उनको, और उस हिसाब से, लेकिन उसके क्या हुआ कि जितने हाईवे चौड़े हुए हैं, जितने उनमें, उसी हिसाब से ट्रैफिक बढ़ गया। अगर देखा जाए तो आज से अगर हम 25-40 साल पहले की बात भी करें, तब भी बॉम्बे गाड़ी 50 घंटे में पहुंचती थी, आज भी बॉम्बे 50 घंटे में पहुंचती है। तो वो इतना बड़ा बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन अभी हमारी उम्मीदें हैं, जो नए नए हाईवे आ रहे हैं और उसकी वजह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी और काफ़ी टाइम बचेगा। जैसे डिस्टेंस भी दिल्ली बॉम्बे का कम होने जा रहा है, तो हम उस पर उम्मीद है कि उसके आने से हमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। So does that mean that toll tax is actually proving to be a burden for the road transport industry? देखा जाए तो टोल हम लोगों को क्या है कि आज की डेट में हमारा सर्वाइवल मुश्किल होता जा रहा है। उसका रीज़न क्या है कि आज देखा जाए तो 7 से 8 रुपये पर किलोमीटर टोल है। अगर मैं टोटल एक्सपेंसेस की बात करूं, जो हम ड्राइवर को एक्सपेंसेस पे करते हैं, तो डीजल के बाद जो दूसरा डीजल आज हमारा मोटा मोटा 24 से 25 रुपये पर किलोमीटर लगता है, उसके बाद सीधा टोल आ जाता है। इवन ड्राइवर का जो खर्चा है उससे कम है। तो ये इसकी वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। कॉस्ट बढ़ने से क्या हो रहा है कि हम लोग महंगे होने की वजह से, अगर हम उतना पैसा किराया मांगते हैं तो लोग हमको देते नहीं हैं, तो जिसकी वजह से हमारे को वाइबिलिटी निकालना मुश्किल हो जाता है। और अगर उससे क्या होता है कि ट्रेन के पास लोग चले जाते हैं, क्योंकि ट्रेन के ऊपर ना तो टोल है
और ना ही उसकी इतनी टायर कॉस्ट, क्योंकि टायर इतने महंगे हो गए, नई गाड़ी इतनी महंगी हो गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया अभी। तो ये रिसेंटली मतलब हमारी पर किलोमीटर कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। तो हमारे लिए रेलवे एक बहुत बड़ा कंपटीशन खड़ा हो गया है। अगर ये टोल और हमारी डीजल में अगर हमारे को तो कुछ कम होगा तो हम रेलवे को एक किस्म से कंपटीशन कर सकते हैं। अदरवाइज लोग कन्वर्ट होते जा रहे हैं ट्रेनों पे, और इस वजह से हमारी वाइबिलिटी नहीं निकल रही। और आगे अगर यही हाल रहा तो एक फ्लीट, इतना बड़ा फ्लीट चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। Satish ji, I'm taking your memories to probably 40 years back. What was the operating cost of a truck back then and what is it like today? कि 89 में 15 रुपये किलोमीटर से ऊपर नहीं था। और अगर मैं 2012-13 में ही बात करूं तो ये 25-26 रुपये किलोमीटर था जो हम ड्राइवर को खर्चा देते हैं। आज ये खर्चा बढ़ के 38 से 40 किलोमीटर हो गया। उसके बाद टायर, रिपेयरिंग, वो सब अलग है। सतीश जी, हम सब जानते हैं कि ड्राइवर शॉर्टेज जो है वो एक रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की सबसे आई थिंक टॉप मोस्ट प्रॉब्लम्स में से एक है। एंड वाइल एवरी कंपनी इज स्ट्रगलिंग फॉर ड्राइवर्स, आपके पास 3000 ट्रक हैं। हाउ डू यू मैनेज, हाउ डू यू मोटिवेट योर ड्राइवर्स? आज देखो, ड्राइवर के एक शॉर्टेज आने का एक ना रीज़न ये भी है कि ड्राइवर के ना हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्री की तरफ से रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है। उसको बेसिक सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही हैं, जो कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। आज देखा जाए, एक ड्राइवर अगर रोड पे ट्रक लेके चलता है तो अगर उसको किसी सिटी में गाड़ी उसकी अनलोड नहीं होती है 2 दिन या 3 दिन, अगर वो दिल्ली जैसी जगह पे या मुंबई जैसी जगह पे मटेरियल लेके जाता है तो उसको अगर बाथरूम जाना हो तो बाथरूम की जगह नहीं मिलेगी तो उसको पे करके और उसको 2 दिन उस ट्रक में रहना पड़ता है। और रास्ते में भी आप ये देखेंगे पुलिस और ये सब जो ड्राइवर को मतलब छुट्टे ही ड्राइवर को एकदम हाथ उठा देना, उससे बदतमीजी से बात करना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अच्छे ड्राइवर जो खुद ड्राइवर रहे हैं और अच्छी अर्निंग के बावजूद भी अपनी फैमिली के लोगों को इस बिजनेस में नहीं लेके आ रहे हैं। वो दूसरे कामों में जा रहे हैं। वो कहते पैसा कम मिले लेकिन वो चलेगा, लेकिन जितनी असुविधा आज ड्राइवर को इंडिया के अंदर है तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट को और हम सबको मिलके एक साथ कुछ ना कुछ ड्राइवरों की सुविधा के लिए करना पड़ेगा, तभी लोग इस बिजनेस में आ पाएंगे। आपकी कंपनी में ड्राइवर्स के लिए क्या फैसिलिटीज़, क्या सहूलियतें हैं? देखिए, जहाँ तक हमारा सवाल है, हम अपने ड्राइवरों के लिए मतलब इन केस मतलब अपनी जो रोड पे तो हैं उसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो स्टे तो उनको रोड्स पे होटलों में ही, और उसी तरह जहाँ सब ड्राइवर रुकते हैं पार्किंग स्पेस जहाँ अवेलेबल है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। बाकी जहाँ अपना मेन हब है वहाँ पे ड्राइवरों के लिए अच्छी पार्किंग, उनके ठहरने की व्यवस्था। इन केस कोई ड्राइवरों को किसी भी तरह की अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट है, किसी वजह से कोई चोट या किसी तरह का, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि उनका इलाज इतने अच्छे हॉस्पिटल में हो, अगर वो चोट मुझे लग जाए तो जहाँ मेरा इलाज होना चाहिए वहाँ ही उनका इलाज होना चाहिए, और ये हमारी कोशिश रहती है और हम लगातार करते हैं। सतीश जी, वी हर्ड दैट रिसेंटली आपके कुछ ड्राइवर्स का एक्सीडेंट हुआ, नॉट ऑन द ट्रक बट अदरवाइज, एंड आपने बहुत मदद की उनकी। कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट? अभी हमारे एक ड्राइवर का चेन्नई में ट्रीटमेंट हुआ तो उसका 3.5 लाख रुपए लगा। वो एक बाइक ने उसको हिट कर दिया था, वो गाड़ी पे भी नहीं था, और उसकी वजह से उसको तो अभी उसका 3.5 लाख रुपए उसका ट्रीटमेंट हुआ। एक्चुअली उसका गिरने की वजह से उसके ब्रेन में थोड़ा ब्लड के क्लॉट्स आ गए थे, तो वो 3-4.5 लाख रुपए लगा है। तो वो हम लोगों ने इमीडिएट उसका जो भी ट्रीटमेंट था उसमें कहीं उसके लिए अपनी कोशिश यही रहती है कि हमारे ड्राइवर को कम से कम ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। सतीश जी, DGFC इज़ अ वेरी पॉपुलर नेम इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एंड कंपनी बहुत ही बेहतर कर रही थी। व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू गेट इनटू द ट्रक डीलरशिप बिजनेस, और क्या ये पहली बार था कि आप डीलरशिप बिजनेस में जा रहे थे? एक्चुअली देखा जाए तो मेरे फादर का एक बहुत बड़ा सपना था। वो 2 चीज़ें कहते थे, एक पेट्रोल पंप खुद का होना चाहिए एज ए ट्रांसपोर्ट के बाद, और दूसरा ट्रक जो है एक वो थोड़ा सा, लेकिन कुदरत करती है तो उनकी जो सोच थी तो हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली, तो आज हमारे पास इन हाउस पेट्रोल पंप भी हैं, और फिर हमें डीलरशिप का मौका मिला तो हम लोगों को ये प्रेफरेंस मिला, क्योंकि हम लोग ट्रांसपोर्ट बिजनेस में थे। ऑलमोस्ट जो टॉप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लोग थे उन सबसे हम लोगों की जानकारी थी, तो हमें मौका मिला तो हमने सोचा कि हम इसमें भी अच्छा कर पाएंगे, तो हमने डीलरशिप लेके अप्लाई किया तो हम लोगों को डीलरशिप मिल गई। तो फिर हम लोग इस आहिस्ता आहिस्ता डीलरशिप बिजनेस में आए, लेकिन इससे पहले भी हम 2000 से कार डीलरशिप में थे। तो हमारे पास टाटा की डीलरशिप थी कार की, स्कोडा की डीलरशिप थी, वॉक्सवैगन की थी, लेकिन जब 2012-13 में हमने जब ये भारत बैंक ट्रक की डीलरशिप ली तो हमने वो डीलरशिप बंद कर दी। अच्छा। हाँ, और लेकिन फिर
अपना 18-19 में हमने मर्सी कार की भी डीलरशिप ली और किया कार की भी डीलरशिप ली। तो दोबारा से हम कार डीलरशिप बिजनेस में भी आ गए। तो लेकिन ट्रक डीलरशिप में हम लोगों को एज ए ट्रांसपोर्टर, क्योंकि हम खुद भी अपने लिए भी गाड़ियाँ भारत बेंज की ले रहे हैं, और एक हम लोगों को एक बहुत कॉन्फिडेंस आया, इतना अच्छा ब्रांड था ये, और उस ब्रांड की वजह से हम बाज़ार में जब दूसरे ट्रांसपोर्टरों को इसकी जब बताया कि इसमें ये अच्छाइयाँ हैं, तो बाजार से भी हमको बहुत जल्दी और अच्छा रिस्पॉन्स मिला। Of Bharat Benz at multiple locations in Daruhera, Karnal, Hisar, Charki Dadri, Bahadurgarh in Haryana and Alipur in Delhi NCR. Dhingra Group Bharat Benz dealership holds Asia's largest 108 base workshop facilities in Daruhera, Rewari and is the highest selling dealer under the flagship of Daimler Indian Commercial Vehicles. Started operations for a new dealership of Kia Motors in the year 2019 at Gurugram and Faridabad, segmenting us to a high-end car dealership. We have already achieved a sale of over 3,000 cars per month for a single car model of Kia Motors. With a launch of new models, we shall set our goals to be one of the highest selling car dealers in India. With this vision, we also stepped into one of the most luxurious passenger car segment, Mercedes-Benz by the name Global Star, located at the most strategic and posh location in Green Park, New Delhi. Based upon the Daimler MAR 2020 concept, it is the first showroom in India and is one of the most luxurious, digitalized and experiential showrooms in India. सतीश जी, हमें याद है जब भारत बेंज की ट्रक्स आई थी और जब आपको डीलरशिप मिला, कई ट्रांसपोर्टर्स ने हमें कहा कि सतीश जी का इतना कॉन्फिडेंस है उन ट्रक्स पे कि उन्होंने हमें कहा है कि अगर ये ट्रक आपको पसंद नहीं आए या परफॉर्म नहीं करे, आप उसे वापस दे दें एंड वील पे यू बैक। व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस? एक्चुअली क्या था, जब हम लोगों ने डीलरशिप हमने अप्लाई करी थी और हम लोगों को LOI मिल गया था, तो उससे पहले में हमने DGFC में खुद 2 ट्रक खरीद लिए थे। तो वो 2 ट्रक हमने ऑपरेट करे, उसको चलाया। तो 2 ट्रकों को हम 15-20 हज़ार किलोमीटर के बाद चलाने में ये लग गया कि ये जो दूसरे ट्रक हैं उनसे बहुत बेटर है। तो उसके बाद हम लोगों को डीलरशिप आ गई, तो हम दूसरे लोगों के पास गए। उस कॉन्फिडेंस को देखते हुए हमने दूसरे ट्रांसपोर्टर को ऑफर दी कि आप ये गाड़ी रखो, और अगर ये गाड़ी अगर नहीं परफॉर्म करेगी तो ये गाड़ी की जो भी कॉस्ट है वो हम आपको वापस दे देंगे और हम आपसे गाड़ी वापस ले लेंगे। तो इस करके हमने 20-25 ट्रांसपोर्टर को ऐसे गाड़ी दी, पर आप बिलीव करें, नॉट इवन ए सिंगल गाड़ी भी हमारी वापस नहीं आई। हाँ, और उनसे हम लोगों को रिपीट ऑर्डर मिले और 3-4 महीने में हमने इतनी अच्छी सेल अपनी कर ली कि किसी डीलरशिप को ब्रेक इवन में आने में 2-2 साल लग जाते हैं, हमारी ये डीलरशिप 6 महीने बाद ही ब्रेक इवन पर आ गई। भारत बेंज कंपनी से कितना सपोर्ट मिला आपको इन दिस जर्नी ऑफ योर्स? नहीं, कंपनी नो डाउट हम लोगों की बात को मान रही थी, हमारे सजेशन को मान रही थी। जिस तरह की गाड़ियाँ रिक्वायरमेंट थी उस तरह की गाड़ियाँ लेके आ रही थी। तो उन्होंने, कंपनी ने भी हमको बहुत हेल्प किया। कस्टमर्स के पास जाके हमारे साथ गए और हम लोगों को गाड़ियाँ जैसा भी था, किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत आई तो कंपनी ने इमीडिएट उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। तो नो डाउट कंपनी की सपोर्ट तो थी हमारे पास, लेकिन प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से, क्योंकि किसी भी आदमी को, कोई भी मेरे रिलेशन में हो, उसको मैं 2-3 गाड़ियाँ तो अपने रिलेशन की वजह से दे सकता हूँ, लेकिन जो रिपीट ऑर्डर मिलेगा वो परफॉर्मेंस बेस ही मिलेगा। तो नो डाउट प्रोडक्ट अच्छा था, जिसकी वजह से हमें रिपीट ऑर्डर मिले। आज भी हम अच्छा कर रहे हैं और इतना, आज हम लोग ऑलमोस्ट 10,000 प्लस ट्रक बेच चुके हैं। और जो हमारी वर्कशॉप है वो एशिया में सबसे बड़ी वर्कशॉप है भारत बेंज की। सतीश जी, ये वर्कशॉप कहाँ पर है और इसकी कैपेसिटी क्या है? ये धारोड़ा में और 110 बे की वर्कशॉप है अप्रोक्सीमेट। हाँ जी, हाँ जी। तो 8 एकड़ में ये वर्कशॉप है और मतलब हम लोगों को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग हमारी सर्विस से खुश हैं और रिपीट मतलब गाड़ियाँ कंटिन्यूस हमारे पास ही आती हैं। तो एक ये रिलेशन भी है और लोगों का एक ट्रस्ट भी है और एक हम लोग उसको डिलीवर भी करते हैं, उनके विश्वास को बरकरार करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को ये बिजनेस मिल रहा है। सतीश जी, अक्सर देखा गया है कि ड्राइवर्स जो हैं वो किसी और ब्रांड के ट्रक या न्यू मॉडल्स को नहीं एक्सेप्ट करते ओपनली। हाउ इज़ द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ योर ड्राइवर्स टू दीज न्यू ट्रक्स? आज की डेट में तो, आज मेरे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है किसी दूसरी गाड़ी को कंपनी में ला के चलाना, क्योंकि ऑलमोस्ट ड्राइवर भारत बेंज में इतने सेटल हो चुके हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो नो डाउट भारत बेंज ही रहती है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो भारत बेंज नहीं बना रही है या कुछ हमारे को ऐसी, तो हम लोग, ऐसा नहीं है, टाटा लेलैंड की गाड़ियाँ भी लेते हैं। तो नो डाउट वो भी मतलब, लेकिन हाँ नो डाउट कि आज हमारी पर किलोमीटर कॉस्ट देखी जाए तो भारत बेंज की दूसरी गाड़ियों से कम है।
Satish ji, we all know managing 3,000 trucks is not a joke. I mean, ट्रांसपोर्ट कंपनीज 100, 200, 500 गाड़ियाँ संभाल कर भी परेशान हो जाती हैं. हाउ डू यू मैनेज दिस? व्हाट इज़ द प्रोसेस? बिकॉज आजकल लोगों से 50-100 गाड़ियाँ नहीं हैंडल होती, अब 3,000 ट्रक हैंडल कर रहे हो. ये भी देखो ये सब चीज़ें एक दिन में तो हुई नहीं है. तो ऐसा ऐसा गाड़ियाँ बढ़ी. हर साल हम जैसे पहले हम 50 गाड़ियों में थे, फिर 100 पे पहुँचे, 200 पे पहुँचे. जैसे जैसे गाड़ियाँ बढ़ती चली गई उसके साथ नेटवर्क बढ़ता चला गया. फिर 1000-1200 गाड़ियाँ आ गई, 1300 गाड़ी हो गई. लेकिन उसके टाइम लग रहा था अब इससे ज़्यादा गाड़ियाँ हम नहीं संभाल पाएंगे. फिर हम लोगों के बच्चे जो हैं, मेरे ब्रदर का बेटा, मेरा बेटा, मेरे नेफ्यू मतलब इस बिज़नेस में आए. तो उन लोगों ने भी, तो वो लोग भी इस बिज़नेस में आने लगे. तो फिर उन्होंने इसको अच्छे से कंट्रोल करा. तो आज वो हमारा एक टीम, इतनी अच्छी टीम बन गई है कि हम 3 तो क्या, हम 4-5 हज़ार ट्रक भी ऑपरेट कर सकते हैं. What is your target for the future? Any goals in mind? टारगेट से कभी कुछ नहीं होता. जब हम लोग इस बिजनेस में आए थे तो कभी हमने सोचा नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे. आदमी को अपना बेस्ट डिलीवर करना होता है. हमने उसी तरह से जैसे सरकमस्टांसेस थे उस तरह से परफॉर्म करते चले गए. बाकी स्कोर, मार्क्स, रिजल्ट तो ऊपर वाले के हाथ में है. तो जो भी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. ज़रूरत मिलेगी, बिजनेस मिलेगा तो एक्सपेंशन करेंगे, प्रॉफिट होएगा ज़रूर करेंगे. लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर प्रॉफिट नहीं है, सर्कमस्टांसेस नहीं है तो अननेसेसरी दिखाने के लिए एक्सपेंशन करना, वो कभी भी नहीं करेंगे. सतीश जी, लेट्स से हाइपोथेटिकली अगर आपको आज अपनी फ्लीट 3,000 से 6,000 पे ले जानी है, डू यू हैव द सिस्टम, डू यू हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट? हाउ कैन दैट बी मेड पॉसिबल? सर देखिए, हमारा 50 साल एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट. मेरे को आज 40 साल हो गए ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में. तो नो डाउट चीज़ें तो ऐसा हुई हैं. जब 1,000 से 3,000 हम ऑपरेट कर पा रहे हैं तो 3 से 4, 3 से 6 एक दिन में तो नहीं होएगा. लेकिन 3 से 4 पहुँचेंगे. उसी तरह से सिस्टम डेवलप करेंगे, कुछ और वर्कशॉप्स बनाएंगे, कुछ हब बनाएंगे, और उस हिसाब से फिर हम इसको एक्सपेंशन उसमें आएंगे. अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ज़रूर हम तैयार हैं. सतीश जी, हमने कई ट्रांसपोर्ट कंपनीज ऐसी देखी हैं जहां पर सेकेंड या थर्ड जनरेशन आने के बाद कंपनी स्प्लिट हो जाती है. जो यंगस्टर्स है उनका माइंडसेट अलग होता है, उनका नेचर, थिंकिंग, सारा कुछ एक अलग तरीके पे एक फ्रिक्शन हो जाता है. बट आपके कंपनी में हमने देखा है इन सो मेनी बिजनेस वेंचर्स, यंगस्टर्स साथ में मिलकर काम कर रहे हैं. देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्रिक्शन और टेंशन बिटवीन द यंगस्टर्स. आपने इन्हें कैसे जोड़ के रखा है? सर मेरे 3 बड़े भाई हैं, तो मैंने उनको कभी बड़ा भाई नहीं समझा. किसी को अपने फादर समझा, किसी को अपना गुरु समझा, और उनके साथ हम लोग ऐसे ही रहे और ऐसे हम लोगों ने काम किया. और ऐसे ही जब हमारे बच्चे इस बिज़नेस में आए तो हमने ये नहीं सोचा कि ये मेरे भाई का बेटा है या मेरा बेटा है या मेरा. तो हमने उन लोगों को अलग अलग सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी. और नो डाउट वो भी बच्चे भी इतने अपने उनमें इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि अब वो अलग अलग बिजनेस में, कोई डीलरशिप देखता है, कोई किया की डीलरशिप देखता है, कोई मर्सिडीज की देखता है, कोई ट्रांसपोर्ट बिजनेस देखता है, कोई उसमें ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन देखता है. लेकिन उनके अपने अलग अलग सेपरेट बिजनेस हैं. लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग जैसे हम चारों भाइयों की थी उससे भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. तो नो डाउट किसी भी बड़े काम करने के लिए आपको या तो पार्टनरों की ज़रूरत है या हैंड्स तो चाहिए. तो अगर वो घर में ही अवेलेबल हैं और बच्चे ये समझ रहे हैं, और नो डाउट जब तक वो इस चीज़ को समझेंगे तो ग्रोथ होएगी. तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में देखा कि हमने जॉइंट फैमिली में खूब इंजॉय किया है. जब प्रॉब्लम आई है तो दूसरे को दे देते हैं, जब कुछ अच्छा हो जाता तो अपने ऊपर ले लेते हैं. But I think you have done very well to delegate responsibilities in a way that there is no clash anywhere. I think that has helped, right? हाँ जी, सबको अलग अलग बिजनेस है, किसी का दूसरे के साथ इंटरफेरेंस नहीं है. जो बिजनेस देख रहा है वो सेपरेटली देख रहा है. अगर वो ट्रांसपोर्ट देख रहा है तो सेपरेटली देख रहा है, डीलरशिप देख रहा है तो वो सेपरेटली देख रहा है. तो कनेक्टेड है हम लोगों के साथ. उनका अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हाँ सतीश जी, ड्राइवर्स शॉर्टेज तो एक प्रॉब्लम था ही, बट एक और प्रॉब्लम जो इंडस्ट्री का था वो था यंगस्टर्स फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं कर रहे थे. बट हियर यू हैव नॉट ओनली मैनेज टू गेट ऑल द यंगस्टर्स इनटू द बिजनेस, बट एंड ऑब्वियसली ऑल ऑफ देम आर डूइंग वेरी वेल. आपने उन्हें कैसे मोटिवेट किया टू जॉइन द फैमिली बिजनेस? ऐसा है कि ये ना हर बंदे का अपना इंटरेस्ट होता है. जैसे हमारे घर में भी 3 लोग डीलरशिप बिजनेस में और 3 लोग ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हैं. तो वो जब आए तो उनको लगता था, लेकिन जब उनको ये लगा कि ये बिजनेस अच्छा है, इसमें
बड़ी टर्नओवर है, अब अच्छा हो सकता है। और 1 साल 6 महीने में 8 महीने में जब वो एक सिस्टम में आ गया, अब अगर मैं आपको बोलूँ, मेरे लिए खुशी की बात यह है कि आज मैं कम एग्रेसिव हूँ, जो हमारे बच्चे ट्रांसपोर्ट में वो ज़्यादा एग्रेसिव हैं। वो बिजनेस के लिए मैं कभी मना करता हूँ, बिजनेस नहीं बोलेंगे पापा हमको लेना है या अंकल लेना है बिजनेस, तो नो डाउट उनकी आज अगर हम ग्रोथ है तो उनकी भी एक हमारे को सपोर्ट है, और एक उनकी पॉजिटिव है कि हमें ग्रोथ करनी है और अच्छे बिजनेस लेने हैं, तो हमें मिलने हैं तो हमने लेने हैं। तो नो डाउट उनकी सपोर्ट के बगैर ये सब पॉसिबल नहीं था। आज हमारे पास लोग भी बहुत अच्छे अच्छे हैं जो हमारे साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं। सारे ब्रांचों में हमारे पास ऑलमोस्ट जितने भी मैनेजर हैं, ब्रांच मैनेजर हैं, रीजनल हेड हैं, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई 35 साल से है। तो नो डाउट मेरे को तो ये भी पता है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मेरे से भी 1-2 साल पहले से हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो वो सब लोग हमारे साथ हैं, उनकी लॉयल्टी हमारे साथ है। फिर हमारे साथ जो और हमारे वर्कशॉप मैनेजर और हमारे ट्रैफिक मैनेजर, वो सब लोग मतलब एक टीम है, और वो इतने लोग सब पुराने हो गए, वो एक परिवार की तरह हम लोग रहते हैं, और ऐसे ही हम सब काम करते हैं। तो इट्स ए टीम वर्क। हाँ सतीश जी, यू हैव स्पेंट 40 years इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, एंड आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है सारे बिजनेसेस को हैंडल करने के लिए तैयार है। सो आर यू लुकिंग एट रिटायरमेंट एनी टाइम सून? देखो, मेरे को रिटायरमेंट लेके भी मेरे को कोई बेनिफिट, मतलब मेरे को जिस तरह से आज मैं थोड़ा अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। मैं सुबह उठता हूँ, वॉक पे जाता हूँ, उसके बाद 11:30-12 बजे मैं ऑफिस आता हूँ, उसके बाद 6-7 बजे तक। ज़रूरी नहीं है मैं ट्रांसपोर्ट बिजनेस देखूँ, मैं अपने नेफ्यू के साथ डीलरशिप में भी इन्वॉल्वमेंट रहती है, उसमें किया में भी और भारत बेंच में भी, कभी मर्सिडीज ट्रक में भी, मेरी और कार में भी ज़रूरत होती है तो मैं वहाँ भी जाता हूँ। जो न्यू डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन वगैरह चलती हैं तो उसमें भी मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। तो 5-6-7 घंटे शाम को मैं फिर फ्री होके घर चला गया, या तो कभी योगा, कभी जिम, या फिर कोई गेस्ट हैं, तो मैं तो एंजॉय करता हूँ। तो मैं तो अगर काम भी कर रहा हूँ तो एक रिटायरमेंट की तरह कर रहा हूँ, खुश भी हूँ और इस माहौल को एंजॉय कर रहा हूँ, तो फिर रिटायरमेंट लेनी क्यों है? जी, व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स ऑफ DGFC? देखिए, फ्यूचर प्लान अभी जैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट तो है ही हम लोगों का मेन बिजनेस है, सब कुछ आज जो भी हम लोगों की ग्रोथ है या आज एक रिस्पेक्ट मिली है इसी से मिली है। उसके बाद हम लोग डीलरशिप बिजनेस में है, अभी हम लोग कुछ रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में भी कर रहे हैं, तो वो भी हम लोगों का चल रहा है। तो हमारा यही है कि हम 3-4 वर्टिकल में रहें, कभी किसी वर्टिकल में तेज़ी या लॉस या तो उससे क्या होता है कि अगर आप 2-3 वर्टिकल हैं तो आप सेफ रहते हैं। कभी आप एक ही बिजनेस में सारा स्टेक लगा दें तो कभी कोई मंदा तेजी आ जाए तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सतीश जी, व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू जिससे रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का जो बिजनेस है वो कुछ हद तक आसान हो जाए और बेहतर हो जाए? व्हाट वुड बी योर सजेशंस? देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट ना विकास का पहिया है। ये क्या, जितना ट्रांसपोर्ट जो बिजनेस है एक विकास का पहिया है। जिस तरह आप इंडस्ट्री, ये जितना पहिया अच्छा घूमेगा उसी तरह से देश का विकास होएगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस विकास को रुकने ना दे, इस विकास को बनाए रखे। ड्राइवरों के लिए बेसिक जो लोग इसमें आए, गवर्नमेंट को भी आज रेवेन्यू मिलता है, नो डाउट। ट्रक बनते हैं, ऑटो पार्ट्स बनते हैं, आज इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री टॉप पे चल रही है। लेकिन अगर हम इस इंडस्ट्री को बचा के रखेंगे और इसी तरह हम लोग, तो उसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें जहाँ पे भी ज़रूरत है, आज ड्राइवरों के लिए रास्ते में कोई स्टे फैसिलिटीज़ नहीं है, उस चीज़ के ऊपर हमें वर्किंग करनी चाहिए कि ड्राइवर जब रात को गाड़ी खड़ी करके सो गया तो उसको एक अच्छी पार्किंग मिले ताकि वो रात भर सो सके। आज ड्राइवर के आगे उसको चिंता ये रहती है कि उसकी गाड़ी वहाँ खड़ी, अगर वो सो गया तो पीछे से उसका कोई डीजल चोरी कर लेगा, कोई उसके टायर खोल के ले जाएगा, तो वो आदमी सो ही नहीं सकता। तो जब रोड पर गाड़ी चलाएगा, पूरी रात ढंग से सोया नहीं है, तो नेचुरल है कोई एक्सीडेंट होंगे, कुछ होंगे। तो हमारे को चाहिए कुछ, हम सब मिल के, कुछ सरकार हमारे साथ मिलके, कि ड्राइवरों के लिए रास्ते में पार्किंग की जगहें बने, ड्राइवरों को सोने के लिए कोई अच्छा सा एक साधन बने, भले ही उसके कुछ चार्जेस रख दिए जाए। कुछ ऐसी चेन बनेगी जो वहाँ पे ड्राइवरों के लिए फूड का जो भी है एक लमसम पेमेंट कंपनियों से चार्ज कर ले और उनको पूरे इंडिया में हर 100 किलोमीटर बाद उनको फूड की फैसिलिटीज़ मिल जाए। ड्राइवर के पास कूपन हो, वहाँ जाके खाना खा ले। तो ये चीज़ें हैं, हमें सोचनी पड़ेंगी कि ड्राइवर को बजाय परेशान होने के हम उसको कुछ कूपन दे दें और वो हर 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर में होटल हो जहाँ पर वो कूपन दे के खाना खा ले। तो उससे क्या होगा कि ड्राइवरों को जब सोने को ठीक से मिलेगा, खाने को अच्छे से मिलेगा, तो और लोग भी इस ट्रेड में आएंगे। अभी एसी गाड़ियाँ आ रही हैं, एसी गाड़ी मैंडेटरी करनी चाहिए ताकि आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि एसी गाड़ी में एक गलत फहमी है कि डीजल ज़्यादा खाती है।
लेकिन अभी हम जब पहले देखा जाए तो हम जब नॉन एसी कारों में घूमते थे, हवा का जो वो था वो आदमी को इतना थका देता था, जितना गर्मी और वो नहीं थकाते थे, जितना हवा के जो शोर था वो थका देता था। आज हम लोगों को आज नॉन एसी गाड़ी में दोबारा से जाना पड़े तो कितना मुश्किल है। तो ड्राइवरों के लिए भी गवर्नमेंट को चाहिए कि एसी गाड़ियाँ मैंडेटरी कर दे, कैबिन गाड़ियाँ मैंडेटरी कर दे। तो उससे क्या होगा कि फिर लोग आएंगे, अच्छे मतलब लोग भी इस काम में आएंगे। तो ये बेसिक सुविधाएं हमें ड्राइवरों को प्रदान करनी चाहिए। दूसरा गवर्नमेंट को चाहिए, जैसे दूसरा जो टोल है, देखा जाए तो टोल बहुत ज़्यादा टोल है। इतना ज़्यादा टोल आज गाड़ी के लिए भरना मुश्किल है। मेरे को नहीं पता 8 रुपये किलोमीटर अगर गाड़ी टोल पे करेगी तो ड्राइवर गाड़ी का मालिक का प्रॉफिट ही 2 रुपये 3 रुपये किलोमीटर होता है, और 8 रुपये किलोमीटर टोल चला गया और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद मालिक को मिलेगा क्या? तो टोल बढ़ेगा जो हाँ, तो सरकार को चाहिए इस टोल के बारे में रिकंसिडर करना चाहिए। चाहे भले ही मैं तो कहता हूँ कि डीजल में आप जो कोई थोड़ा बहुत और लगा के अब ये रोज़ टोल टैक्स का ये चक्कर ख़त्म कर दें, तो क्या हो रहा है कि गाड़ियाँ पर मतलब टोल इतना टोल मतलब पॉसिबल ही नहीं है पे करना। सतीश जी, once again taking you back to the initial days of your career, आपने ट्रक्स भी चलाए हैं। How was that experience? हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि मैंने 8-10 ट्रिप करे थे। तो उसमें इतना अब देखा जाए तो वो अलग ही टाइम था। एक गाड़ी थी जो 10 टन पास करती थी, 18-19 टन माल डालते थे उसमें, और उसमें टायरों की जो था हर 20-25 किलोमीटर के बाद टायर हीटअप हो जाते थे, गाड़ी को रोकना पड़ता था। गाड़ी अंदर से इतनी हीटअप हो जाती थी कि गाड़ी के अंदर बैठना ही मुश्किल हो जाता था, और पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी करके कोई वहाँ उसके नीचे गाड़ी के नीचे लोग सो जाते थे। तो एक वो टाइम था। लेकिन अभी नो डाउट क्वालिटी ऑफ व्हीकल्स बहुत इम्प्रूव हुई है, मतलब इससे अच्छी इम्प्रूवमेंट आज जो हम ट्रक चला रहे हैं वर्ल्ड क्लास ट्रक हैं, जो इंडिया में ट्रक मिल रहे हैं एग्जैक्टली वही ट्रक हैं जो यूरोप में मिल रहे हैं। नो डाउट थोड़ा बहुत तो फ़र्क है, लेकिन काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। सतीश जी, while your fleet is growing continuously, vehicle technology में कई changes आए हैं। How are you managing this? हाँ, देखिए अभी जो पहले ट्रक थे वो काफ़ी पोल्यूशन करते थे और फ्यूल भी उनकी एवरेज भी जो थी वो काफ़ी कम होती थी। तो DGFC बड़ी तेज़ी से अपने ट्रकों को यूरो 6 में चेंज करने में हम लोग लगे हुए हैं, और काफ़ी ट्रक हमने पीछे रिसेंटली पिछले 1 साल में 300-400 ट्रक अपने फ्लीट के अंदर यूरो 6 ट्रक ऐड ऑन करें, और यूरो 3 और वो ट्रक्स हमने बाहर भी करे हैं। एक तरफ तो हम ये चल रहे हैं कि भाई डीजल जिससे पोल्यूशन भी कम हो और अच्छी क्वालिटी के ट्रक हमारी कंपनी में आ जाएँ। दूसरा हम ट्रायल कर रहे हैं CNG और LNG के भी कुछ ट्रकों को देख के कि अभी उसके ऊपर हमारी वर्किंग चल रही है कि थोड़े 2-2, 3-3 ट्रक हम उनके लेके वर्किंग करें, और जो भी मॉडल हमें इकोनॉमिकल हो, जिससे हमारी कॉस्ट भी कम हो, पोल्यूशन भी कम हो, वो वाले ट्रक फिर आगे इन फ्यूचर अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी में लेके आएँ। तो इसके लिए हम काफ़ी मतलब लगे हुए हैं, और ट्रायल भी हम लोग कर रहे हैं, और डिस्कशन भी हम लोगों का कंपनियों के साथ चल रहा है। सतीश जी, आपको मैंने जितना देखा है सालों से, आपने एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाया है बिटवीन वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। लेकिन जब आपने इंडस्ट्री ज्वाइन की उस वक्त हालात कैसे थे, और उस वक्त जो वर्किंग कंडीशंस या वर्किंग टाइमिंग्स थे वो क्या थे? देखिए उस टाइम क्या होता था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट तो होते नहीं थे, मार्केट से हम लोगों को माल लोड करना होता, तो माल जो रेट थे वो ऊपर नीचे काफ़ी कुछ, क्योंकि बाज़ार में जो ज़्यादा मटेरियल था वो वेजिटेबल्स फ्रूट वगैरह होते थे, और उन दिनों में रेट ऊपर नीचे काफ़ी होते थे। तो हम लोग भी जब ये शुरुआती बात करें तो हम लोग सुबह 11-11:30 बजे घर से निकलते थे, रात को 9 बजे के करीब मतलब नो एंट्री खुलती थी, ट्रक आते थे, तो उस ड्राइवर का हिसाब लिखना, तभी तक हम वहीं बैठे रहते, क्योंकि सारा काम सब्जी मंडी से रिलेटेड था, तो आपको ऑफिस भी वहीं रखना पड़ता था। तो हम लोगों को लगातार 10-12 साल कोई भी दिन ऐसा नहीं था कि हम 1-1:30 बजे से पहले अपने घर पहुँचते हों, क्योंकि सारा काम ही ऑलमोस्ट खुद करना पड़ता था। ड्राइवरों के हिसाब खुद लिखने पड़ते थे, उसके बाद गाड़ी को लोड करवाना, लोड करके उसके किराए क्रूए सब, वो सब कोई ऐसा तो था नहीं कि बिल बनते थे, चेक अकाउंट्स में पेमेंट आती थी, ड्राइवर सारा पैसा कैश लेके आता था, तो वो सब काम खुद ही करने पड़ते थे। एंड व्हाट इज़ द सिनेरियो लाइक नाउ? तो ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस है, बिल बनते हैं, पेमेंटें अकाउंट में आती हैं, तो ऐसा वो नहीं रहता कि कलेक्शन में आई है वो भी है, वो बिल बना के दे दी, पार्टी से पेमेंट आ गई, जो हिसाब भी है वो ड्राइवरों का ऑलमोस्ट जैसे फिक्स से एक्सपेंसेस है, तो इतना ज़्यादा वो नहीं होता, कितने किलोमीटर गाड़ी चली उस हिसाब से उसको पैसा दिया जाता है, और उस हिसाब से उसका, तो अब वो वाली चीज़ें इतना कॉम्प्लिकेशन, हिसाब भी ईजी हो गया। तो अब ठीक है, फिर अब क्योंकि काम बड़ा है, स्टाफ भी है, तो दिन और रात के अलग अलग लोग भी हैं,
तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इस वजह से मतलब उन दिनों में 50 गाड़ियाँ संभालना मुश्किल था, आज 3000 गाड़ी संभालना आसान है। Friends, we have always seen that transporters are overstressed, overworked. उनके लाइफ में कुछ ना कुछ काम को लेके चलता ही रहता है। बट ऐसे बहुत कम ट्रांसपोर्टर्स हैं जो अपने हेल्थ या अपने फिटनेस के बारे में सोचते हैं। एंड सतीश जी इज़ वन ऑफ देम हु नॉट ओनली जस्ट थिंक्स अबाउट इट बट ऑल्सो पुट्स इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। मॉर्निंग वॉक्स हो गए या शाम को ऑफिस के बाद टेनिस खेलना हुआ, उनके ऑफिस में ही टेनिस कोर्ट्स हैं। सो लेट अस नो फ्रॉम सतीश जी व्हाट ही थिंक्स अबाउट फिटनेस एंड व्हाट इज हिज रेजीम लाइक। सतीश जी, मेरी एक एडवाइस भी है सब ट्रांसपोर्टरों के लिए कि हमारे काम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। जब भी कभी स्ट्रेस हो तो आप कभी भी अपना शाम को जिम या कोई भी एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो अगर उससे आपका स्ट्रेस भी दूर होता है और आपको आगे के लिए काम करने के लिए एक जोश भी आ जाता है। तो ज़िंदगी में अगर आपको ज़्यादा काम करना है तो आपको फिटनेस भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी है, और जिसके लिए मैं अपना रेगुलर टाइम निकालता हूँ। मतलब ये हमारा देखिए, अगर ये ऑफिस के अंदर आप देखिए तो हमने एक टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, वॉकिंग ट्रैक सब कुछ बनाया हुआ है। स्टाफ जब भी हमारा ऑफिस का हमको शाम को काम करने के बाद वो लोग आधा पौना घंटा 1 घंटा अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद फिर घर जाते हैं। जो कभी सुबह जल्दी आ जाते हैं वो भी आके यहाँ खेल सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग अपने स्टाफ अपने लिए ये सब चीज़ें रखी हुई हैं जिससे वो लोग फिट रहें और अच्छा काम कर सकें। जो फिट रहेगा वही अच्छा काम कर पाएगा और एक स्वस्थ आदमी एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। कि आपका रूटीन क्या है एक्सरसाइज या वर्कआउट का? मैं सुबह 7:30 बजे वॉक के लिए चला जाता हूँ। वहाँ अच्छे से वॉक करते हैं, हमारे साथी हैं 8-10 साथी, हम लोग इकट्ठे वॉक करते हैं। उसके बाद योगा वगैरह करते हैं। उसके बाद वहीं बैठ के हम लोग चाय और कुछ डिस्कशंस वगैरह करते हैं। 11, साढ़े 11, 12 बजे मैं ऑफिस आता हूँ। ऑफिस आने के बाद यहाँ पूरा दिन काम करते हैं। काम करने के बाद शाम को 6:30, 7, 8 बजे स्टाफ के साथ ही यहाँ पे टेनिस प्ले करते हैं या कभी जिम चले जाते हैं। हफ्ते में 4 दिन तो ऑलमोस्ट मेरा टेनिस या कुछ ना कुछ शाम को भी एक्टिविटी हो जाती है और यही रूटीन रहती है मेरे। हेल्थ को लेके मैं ऑलमोस्ट 2 घंटे रोज़ अपने लिए हेल्थ के लिए निकालता है, एक्सरसाइज वगैरह के लिए। Friends, as they say, a champion is one who is always remembered, but a legend is one who is never forgotten. And the transport industry can never forget the contribution of Mr. Satish Dhingra, whatever he has done for the trade and his business. And considering the amount of time and effort Satish ji puts in his health and fitness, we are sure he has a long, long way to go. Friends, the legends of road transport industry is going to be a monthly series where once a month we will get you close up to the journey of stalwarts of the road transport and commercial vehicle industry. We will be back again next Sunday with our regular episode. Until then, stay safe and stay fit. Jai Hind. Good morning.